Hello dear students, now today we'll take the next topic, that is metallurgy. Board has reduced lot of syllabus from this chapter. Again, you will have only occurrences of metals in nature. So you will have only occurrence of metal in nature, the meaning of mineral and ore, and common ores of only aluminium. Okay, iron and zinc is not there in the syllabus. Then the stages involved in the extraction of metals is not there, and then you have only extraction of aluminium. So this part is there, and then alloys also is removed. So only this part, which is very important, extraction of aluminium, is there in the syllabus. So as you know, metallurgy is the process in which metals are extracted into their pure form. So let's see that where these metals actually occur. So till date we have 118 different elements known to us, and they are widely distributed in their free state as well as combined form. Let us see that what is the abundance of some elements. Oxygen, as you can see, it is 46.6%, aluminium is 8%, calcium is 3.6, potassium is 2.8, hydrogen is 0.14, silicon 27.7, iron 5, sodium 2.8, magnesium 2.1, and phosphorus is 0.12%. So let us see what is the definition of metals. It is defined as the elements which form positive ions by the loss of electron. We have already studied all these things. Hydrogen is a non-metal which also forms positive ions. So it is the exception. Hydrogen forms positive ions also. Non-metals are small in number, but they play very vital role in our daily life. Except hydrogen are the elements which form negative ions by the gain of electrons. So this was the definition. So what are minerals and ores? Let us define minerals. They are the naturally occurring compounds of metals. So metals are not in free state because they are very reactive. So they form their compounds mixed, that is chemically combined with another substances, another elements, and form compounds. And plus this compound gets mixed up with soil, mud, sand, silica, limestone, rock, etc. And with these impurities, this is called gangue or matrix. So now you know what are minerals. Okay. Now, minerals are the compounds of metals. What are ores? Ores are these minerals from which metals are extracted commercially at a lower cost. That means all ores are minerals. Okay. All ores are minerals, but all minerals are not ores. In some cases, the minerals are not having that much amount of that metal that we can work on it to find out the metal from it. So ore, अगर मैं बोलूँ iron का ore, so the ore will be only when you can take it out at a lower cost with minimum effort. तो अगर हम ओर बनाने जा रहे हैं, अगर हमें ओर है किसी चीज़ की पता है, तो हमें उसमें से बहुत सारा मेटल मिल सकता है, लेकिन मिनरल में कई बार कम मेटल भी होता है, तो उसको हम ओर नहीं बोल सकते, इसीलिए हम बोलते हैं तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स. सारे ओर्स मिनरल्स हैं क्योंकि उसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं. So this is the line that all minerals are not ores but all ores are minerals. And now let's see the metals and their main ores. This is very important. But in exam mostly जो आते हैं उनको मैं बता देती हूँ आपको, जो आपको याद करने हैं, to write them in the copy and learn. So limestone and gypsum you have to learn. Then bauxite, cryolite you have to learn. Then zinc blende and calamine, galena, then copper pyrite, cinnabar, argentine, and horn silver. So these are some very important main ores of these metals which you have to learn with formula. You know that insoluble ores which do not combine in water, they are found as rocks, and soluble ones are found in sea water because they will form alkali or some chlorides and get washed away by the rainwater. So common ores, you have in your syllabus only aluminium. So iron and zinc is not there. Common ores of main ores you have to learn, but common ores only of aluminium you will be learning. So main ore of aluminium is bauxite, that is Al2O 3.2 H2O. Formula of bauxite is
this, and from which aluminium is extracted. So this is the main ore, and then you have cryolite and corundum, which are the other common ores of aluminium. Now this part has been removed from the syllabus, but because we are extracting metal, that is aluminium, so I will give you a brief explanation of these stages which are involved in the extraction of metals. So first of all, whenever we are extracting the metals from ores, what we are doing, we are following these steps. So first one, we will take the ore, then we will crush and grind it. So crushing and grinding of the ore is done on the first hand. After that, after crushing, and why do we crush and grind? We crush and grind so that whatever chemicals will be adding to it, it is mixed properly in it. And sometimes this crushing and grinding is also known as pulverization. Okay, pulverization. So this is also known as pulverization. After that, it is concentration of ores. This is also known as dressing. तो ड्रेसिंग और यहाँ पे हम गैंग रिमूव करते हैं. सो रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज इज डन हियर. यहाँ पे हम इम्प्योरिटीज रिमूव कर देते हैं कंसंट्रेशन में. और कंसंट्रेशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं लीचिंग. सो concentration of ores, that is removing the impurities or the rocky impurities and everything, is known as concentration or dressing of the ore. Now here in this concentration we use several methods. For example, first one is gravity separation. Now this gravity separation, as you all know, the word is indicating that here they must be using the difference in the densities of the ore and the impurities. So main criteria will be in difference of density. So you can just with the difference of that density, the denser particles will settle down and the lighter gangue particle will be washed away. So this is the gravity separation. Then you have froth flotation. In this process, it depends upon the wettability of the ore with oil and the gangue particles by water. The crushed ore is wetted by the oil and gets separated from the gangue in the form of froth, and the impurities get wetted by water and remain behind in the tank. So this is froth flotation. Magnetic separation, you know that we can attract the particles, metal particles, to the magnet and can be separated. And chemical method, that is leaching. What is leaching? Leaching means when you add a reagent or any chemical to the ore in which ore is soluble but impurities are not soluble. So what will happen? You can take out the ore in the form of filtrate. This we will see when we will study aluminium, extraction of aluminium. There you will come to know about this term known as leaching. So after concentration, so first step is crushing and grinding, second step is concentration. There comes the third and very important step, that is roasting and calcination. Now what is roasting or calcination? When this concentrated ore is converted into its oxide, then this प्रोसेस इज़ नोन एज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. क्योंकि जो भी आपकी ओर है उसका आप क्या बनाएंगे? उसका ऑक्साइड बनाएंगे. तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में यू आर मेकिंग एन ऑक्साइड ऑफ द ओर. सो प्रिपरेशन, व्हेन आप उस ओर का जब ऑक्साइड बना देंगे तो जो ऑक्साइड बनाने के मेथड हैं वो दो हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि रोस्टिंग में एयर्स में हीट करते हैं ओर को और कैल्सिनेशन में विदाउट एयर हीट करते हैं, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं ओर को. तो इस तरीके से ऑक्साइड्स बन जाते हैं. देन कम्स रिडक्शन, क्योंकि जब आपने उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी, अब जब आप उस ऑक्सीजन को रिमूव करके आपको प्योर मेटल चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया Al2O3, अब ये बन गया आपका ये जो आपका ऑक्साइड बन गया. अब इसमें से मुझे एल्यूमिनियम चाहिए तो मुझे ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करने का. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा. सो देन आई विल गो फॉर reduction. So after roasting and calcination, the metal oxide is reduced or by the heat or by reducing agent. कौन कौन से reducing agent होते हैं? reducing agent होते हैं हमारे कार्बन,
क्या करेंगे, अगर हम कार्बन ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाएगा, ऑक्सीजन है ना, या हाइड्रोजन या वाटर बन के निकल जाएगा। तो ये हमारे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। तो ये अगर हम कॉमन ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनको यूज़ करके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। लेकिन अब एक चीज़ है यहाँ पे कि जब ऐसे मेटल्स की हम बात करें जो कि हाईली एक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, अभी हम बात करेंगे कैल्शियम, एल्यूमिनियम की बात करें तो Al2O3 है, अगर हम इसमें कार्बन ऐड करते हैं तो इट विल नॉट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वाई? बिकॉज दिस एल्यूमिनियम हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम नहीं कर सकते इसको, तो हमें फिर उसके लिए एक अलग से मेथड यूज़ करने का, और वो कौन सा है, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये चूँकि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे चल जाएगा कैथोड पे, और ऑक्सीजन जो है वो किस पे चली जाएगी, एनोड पे। तो ऐसे करके हम इसको आराम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन मेथड। एंड नाउ कम्स, जब रिडक्शन हो गया तो जो हमें मेटल मिला वो प्योर नहीं होगा, उसके साथ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होंगी, 96, 97, 98% प्योर होगा। तो उसके बाद हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी एंड देन वी विल गेट द प्योर मेटल। सो दीज आर सम स्टेप्स जो हमें किसी भी, नॉट ओनली एल्यूमिनियम, एनी और कोई जो हम किसी भी और में से हम व्हेन वी एक्सट्रैक्ट मेटल वी फॉलो दीज स्टेप्स। So now we will see a next topic, that is extraction of aluminium. Symbol, you know, color is silvery white metal, specific gravity 2.2. This is the configuration, valency 3, relative atomic mass, atomic number, and then its position in the periodic table. It is the most abundant metal in the earth crust and it is a reactive metal and so does not occur free in nature, इसलिए compound form में रहता है, and it was discovered by Oersted in 1825. So इस year में आपका एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हॉल एंड हेरोल्ट। सो व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इन 1825, उसके बाद हॉल एंड हेरोल्ट ने 1885 में प्रोसेस डेवलप कर पाया था, तब तक कोई प्रोसेस नहीं था। ऑर्स्टेड ने जब 1825 में कहा था कि बहुत सिल्वरी वाइट सा एक मेटल है जिसका नाम एल्यूमिनियम है, एंड लेटर ऑन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस दिया था वो दिया था हॉल एंड हेरोल्ट ने। एंड दिस एल्यूमिनियम was extracted from its main ore, अभी हमने पढ़ा है मेन ओर है उसकी बॉक्साइट, that is Al2O3.2H2O, and it contains 60% of alumina, that is aluminium oxide. So remember that the main ore of aluminium is bauxite, which contains 60% of aluminium oxide, and rest are the impurities. बाकी सारी impurities हैं, major impurities are ferric oxide, that is iron and titanium oxide, that is TiO2, titanium oxide is, ये हमारे इसमें impurities हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहला जो हमारा प्रोसेस है, सो फर्स्ट प्रोसेस इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। तो ये Al2O3.2H2O को हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है Al2O3 यानी एल्यूमिना बनाना है। तो पहला जो प्रोसेस है इसको हम, चूँकि बेयर ने डेवलप किया था तो इसको हम बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस फर्स्ट this ore is grinded finely and then heated to remove volatile impurities, ऐसी impurities जो हीट करने पे evaporate कर जाती हैं। volatile impurities को remove करने के लिए हमने इस ore को हीट किया और उसके बाद फिर अंडर प्रेशर उसको कंसनट्रेटेड कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, कॉस्टिक सोडा के साथ उसको हमने 2 to 8 आवर्स और 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको हमने हीट किया। तो ये आ गया आपका रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप्स हैं ये। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, फर्स्ट रिएक्शन इज दिस, दैट बॉक्साइट इज हीटेड विथ कंसनट्रेटेड, यहाँ पे आप कंसनट्रेटेड वर्ड लिखेंगे,
concentrated NaOH to give sodium meta aluminate. This is sodium meta aluminate and water. So we have got sodium meta aluminate. Now you will ask कि ये क्या है, NaOH ही क्यों ऐड किया है? तो अगेन आई टोल्ड यू ना, अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लीचिंग हो रही है यहाँ पे NaOH में, चूँकि इसके अंदर बॉक्साइट में आयरन की इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो NaOH में एल्यूमिना तो मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन क्या डिज़ोल्व नहीं होगा? आयरन ही डिज़ोल्व होगा, और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं सैंड वगैरह भी, वो भी डिज़ोल्व नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे NaOH को यूज़ किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NaOH एक बेस है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एक एसिड की तरह बिहेव करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, दिस इज सॉल्ट and this is water, neutralization reaction हो रहा है। and why it is there? because this is amphoteric in nature, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एसिड एंड बेसिस में। तो ये एम्फोटेरिक है नेचर में, तो यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड NaOH के साथ इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये जो सोडियम मेटा एलिमिनेट है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे या इसको हम डाइल्यूशन कर देंगे। नाउ व्हेन दिस इज फॉर्म्ड, द इम्प्योरिटीज आर सेटल्ड डाउन एंड दीज इम्प्योरिटीज आर नोन एज रेड मड। रेड मड इसीलिए बोला कि जो आयरन ज़्यादा है तो रेड मड जो है वो वहाँ पे as a impurity settle down होती है, and this red mud is actually it contains ferric oxides and sand. We will remove all the impurities by filtration, and now this meta eliminate will be hydrolyzed. Hydrolyzed means इसको water में add कर देंगे, dilution कर देंगे इसका। So on diluting sodium meta eliminate with water, और इसको ठंडा करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा यहाँ पे ये टेम्परेचर। इस वाले रिएक्शन का जो सेकेंड रिएक्शन है, इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ये वाइट पीपीटी है, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज हाइड्रोलाइज्ड और एडेड टू वाटर। Now this precipitate is filtered, washed, dried and then it is heated to 1000 degree Celsius. जब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इग्नाइट करेंगे, बर्न करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, then we will get alumina and water. तो अब हमारा ये स्टेप पूरा हो गया, यहाँ पे हमारा ऑक्साइड बन गया। अब इस वाले में आपने देखा, इस प्रोसेस में जो हमने बॉक्साइट वाले में हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये यहीं पे ही जब क्रशिंग और ग्राइंडिंग और हमने ड्रेसिंग ऑफ द ओर करा, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में ही हमारा क्या बन गया, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिना बन गया। सो दिस स्टेप इज कंप्लीटेड हियर। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दिस वाज द सेकेंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। तो जो सेकेंड स्टेप में हमारा ये NaOH बना था ना, now this NaOH can again be used to extract aluminium from bauxite। यहाँ पे हमने NaOH ऐड किया था ना, तो यही वाला NaOH हम इसको आराम से और यूज़ कर सकते। so this NaOH can be used again for this process। तो सेकेंड स्टेप में जो NaOH बना है, सेकेंड स्टेप में जो NaOH बना है, it can be used further in the first step। So the second step, whatever sodium hydroxide is formed, it can be used again for the first step। Now aluminium oxide, due to its great affinity for oxygen, it is a very stable compound। तो ये जो aluminium oxide बना है आपका बहुत stable है। कौन सा है aluminium oxide? Al2O3 बन गया ना alumina हमारा। Now this Al2O3 has a high affinity for oxygen, so this is a very stable compound and it cannot be reduced by carbon और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, उनसे ये रिड्यूस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करना पड़ेगा। और उस मेथड को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन विल बी चूजन फॉर द मेथड। सो ये क्वेश्चन आता है कि वाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वॉज चूजन एज अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग एल्यूमिना। तो योर आंसर विल बी बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज ग्रेट अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम वॉज डिस्कवर्ड इन 1825, बट till from 1825 to
85 इट वाज, तो एल्यूमिना तक तो बनाना आ गया। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। और रीज़न क्या है, क्यों थी ये डिफ़िकल्टी? तो अब देखते हैं कि जब मैंने अभी आपको लास्ट स्टेज में बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी हमें वही इलेक्ट्रोलाइट बनाना पड़ेगा। बट यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैन बी डन इन ओनली मोल्टन स्टेट, एंड दिस एल्यूमिना इज़ हाईली स्टेबल विथ फॉर हीट। मतलब उसको कितना भी हीट कर दे वो मेल्ट नहीं होता, और जब मेल्ट होता है तो 2050 डिग्री, दैट इज़ 2050 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। और इस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम वेपराइज हो जाता है, वेपर्स बन के उड़ जाता है। तो हम उसको मेल्ट ही नहीं कर पा रहे थे एल्यूमिना को, अगर मेल्ट कर दे रहे थे तो उसमें एल्यूमिनियम चला जा रहा था, तो इट वॉज नॉट ईजी टू कलेक्ट एल्यूमिनियम। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव किसने किया, इस डिफ़िकल्टी को रिमूव किया हॉल ने, और उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट डाल देते हैं, वी विल ऐड वन सॉल्वेंट, ओर के साथ साथ सॉल्वेंट भी डाल दिया हमने। ओर बनाया एल्यूमिना, हम उसको मेल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कोई और इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लेते हैं ना। तो ही हैज़ यूज्ड अनदर इलेक्ट्रोलाइट नोन एज cryolite. Now you have to learn the formula of this, that is Na3AlF6. So he used this cryolite, and when he applied the current to the molten mixture, अब इसमें जो रेशियो था वो 1:3:1 था, यानी कि 1 part was alumina, then 3 parts was cryolite, and again 1 part was calcium fluoride, that is fluorspar. तो फिर उन्होंने जब ये क्रायोलाइट डाला उसमें एल्यूमिना के मिक्सचर में और मोल्टन मिक्सचर में, या मतलब जो मिक्सचर था एल्यूमिना का उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसमें उन्होंने कैल्शियम फ्लोराइड डाला, तो उसके बाद उनको क्या दिखाई दिया, उनको शाइनिंग ग्लोब्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपीयरिंग ऑन द कैथोड दिखाई दिए। एंड ही गॉट इलेटेड ओवर द सक्सेस ऑफ दिस of his 3 years, and it took 3 years for him to find out the correct electrolyte. Okay, so कब हुआ ये हुआ है February 23, 1886 में। तो 1825 में डिस्कवर हुआ, लेकिन 1886 में एल्यूमिनियम कुड बी एक्सट्रैक्टेड, और इस तरीके से हॉल ने ये डिस्कवरी करी थी। एंड एल्यूमिनियम जो कि बहुत कॉस्टली था, रेयर था एक टाइम में, गोल्ड से भी ज़्यादा, वो अब बिल्कुल चीप मेटल बन गया, क्योंकि उसको बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया था हम लोगों ने। ओके, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। हमारा हमारा था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, पहला स्टेप था हमारा उसका कंसंट्रेशन, दैट इज बेयर्स प्रोसेस। सेकंड आ गया हमारा हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो फर्स्ट वाज बेयर्स एंड सेकंड इज हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया, यानी हमने पूरा एक सेटअप बनाया, जो भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, जो कि आयरन का टैंक था, और उसका स्लोपिंग बॉटम था। क्यों होगा स्लोपिंग बॉटम, वो भी हम देखेंगे। एंड देन दिस टैंक वाज लाइंड विथ गैस कार्बन, और उसकी जो लाइनिंग थी वो गैस कार्बन की थी, और इलेक्ट्रोलाइट 3 थी वहाँ पे। सो there were 3 electrolytes. Alumina was there was cryolite, and there was fluorspar. So these were in the ratio of 3:1. And then powder coke was also sprinkled over the surface of the electrolyte. Very important question, role of cryolite, fluorspar and powder coke. And the temperature, the molten electrolyte is kept at 950 degree centigrade by electrical heating. तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एल्यूमिना जो है वो 2050 डिग्री तक पे ही मोल्टन में आता है, लेकिन यहाँ पे हॉल ने जब हमने क्रायोलाइट ऐड किया तो ये टेम्परेचर आ गया हमारा, दैट इज़ 950 डिग्री सेल्सियस। और वोल्टेज इसमें 5 to 6 वोल्ट यूज़ हुआ था। एंड वाई लो वोल्टेज, टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ द मोल्टन क्रायोलाइट। अगर अपने हाई वोल्टेज लगा दिया तो जो क्रायोलाइट है वो खुद ही डिकम्पोज हो जाएगा, और उसका जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होगा। सो ये रहा हमारा सेटअप जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कर रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम के लिए हमारा ये आयरन का हमारा वेसल है, और इसमें हमने कार्बन लाइनिंग लगा दी है, एंड दिस कार्बन लाइनिंग एक्ट्स एज ए कैथोड। और जो हमारा यहाँ पे ये चीज़ें ग्रेफाइट डाला है हमने, उसको एनोड बनाया है। और कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ दिस कार्बन, ये यहाँ पे ग्रेफाइट है, दिस इज़ ऑल ग्रेफाइट हियर,
ग्रेफाइट इज डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है हमने, आपको पता ही है इलेक्ट्रोलाइट हमारे 3 हैं। कौन कौन सी हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक है हमारी क्रायोलाइट दैट इज Na3 AlF6, दूसरी है हमारी फ्लोरस्पार दैट इज CaF2, और तीसरी तो हमारी है ही एल्यूमिना दैट इज Al2O3। सो these 3 आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब ये हमारा प्रोसेस जब शुरू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे टैप है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेपर कर रहा है नीचे की तरफ, ऐसे टेपर आ रहा है ताकि जो मोल्टन एल्यूमिनियम है ये यहाँ से आराम से इस टैप में से निकल के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो मोल्टन एल्यूमिनियम विल बी कलेक्टेड। सो एज सून एज द करंट इज पास, जैसे करंट यहाँ पे पास होगा, द पॉजिटिव आयंस विल बी फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन। और यहाँ पे हमारे there will be 3 positive ions, which are they, Na plus, then you have Ca2 plus, and you have Al3 plus. So these are the 3 cations which are formed, and these cations, out of these 3, you know aluminium will be preferentially discharged at the cathode because it is lowest from these 2. तो एल्यूमिनियम गेट्स डिस्चार्ज एट कैथोड, कैथोड में यहाँ पे। तो इसमें जो नेगेटिव आयंस हमारे बने इस वाले रिएक्शन में, पॉजिटिव कैटायंस तो हमारे एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम बने, और जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं वो हमारे क्या बने, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऑक्साइड। अब ये फ्लोराइड और ऑक्साइड में कौन सा डिस्चार्ज होगा एनोड पे, तो वो हमारा होगा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लोअर है सीरीज में। सो ऑक्सीजन विल बी फॉर्म्ड एट एनोड, बट एज यू नो एनोड इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे ये जो कार्बन का एनोड है इसके साथ ये ऑक्सीजन जो है वो मिल के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व्ड एट दी एनोड, एंड इसलिए थोड़े थोड़े देर में क्या होगा, ये यहाँ से कार्बन निकलेगा और ये धीरे धीरे क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, और ये एनोड धीरे धीरे क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। नाउ दिस एनोड विल बी फिनिश्ड बिकॉज कार्बन विल ब्रेक एंड विल react with oxygen to form carbon dioxide gas which will be evolved. So after some times this anode will finish, and that is why it get replaced from time to time. जैसे ही supply of alumina decrease होगी तो voltage 40 to 60 volts पे jump कर जाएगा, तो इसलिए it will glow brightly and the fresh alumina is added. Aluminium obtained is, अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑब्टेन हुआ है वो है 99.8% प्योर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में से जो एल्यूमिनियम हमारा आया है दैट इज़ 99.8% प्योर। तो ये हो गया हमारा कि वाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वाई एनोड इज़ रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एल्यूमिना डालते रहेंगे हम, जैसे ही एल्यूमिना डालते हैं हम, जैसे ही एल्यूमिना की वो कम होती है यहाँ पे सप्लाई, व्हेन एल्यूमिना सप्लाई डिक्रीजेस तो वोल्टेज में चेंज हो जाएगा, एंड यू कैन अटैच अ बल्ब टू सी एंड दैट बल्ब विल ग्रो ब्राइटली। एंड सो दीज आर द रिएक्शंस at cathode and anode. As I told you, they are very very important, so you have to learn these reactions. This is the breaking down of cryolite, this is the breaking down of fluorspar, this is alumina, what are the ions formed here, then discharge मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या डिस्चार्ज होगा। then cathode पे हमारा एल्यूमिनियम बनेगा और एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस बनेगी, और ये जो ऑक्सीजन गैस है इट विल रिएक्ट विथ कार्बन और उससे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी एनोड पे। ओके, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्रायोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्रायोलाइट, फ्लोरस्पर एंड पाउडर्ड कोक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट? सो क्रायोलाइट lowers the fusion temperature from 2050 to 950 and further it enhances conductivity. तो दोनों चीज़ करता है, लोअर करता है टेम्परेचर और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। और फ्लोरस्पार का भी यही है, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर एंड इट इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी
वाई? बिकॉज प्योर एल्यूमिना इज ऑलमोस्ट अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एल्यूमिना देखा आपने बहुत स्टेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मेल्ट नहीं होता है. तो ये सब चीज़ें ऐड करी गई हैं ताकि एल्यूमिना को हम इलेक्ट्रोलिसिस के काबिल बना सकें. ओके, उसको उस फॉर्म में ला सकें. एंड दैट इज़ वाई this fluorspar and cryolite are added. You should remember their formulas. Then what is the use of powdered coke, which we said? So powdered coke is sprinkled over the surface of electrolytic mixture because it reduces heat loss by radiation and it prevents burning of anode. Anode की burning बचाता है और heat loss जो हो रहा है radiation से उसको भी बचाता है. So this is very important question. So you have to learn this. Now, as I told you, there it is 99.8% pure, the aluminum which we have found there. So now we have to do the refining of aluminum. Actually, this refining is not in your syllabus. थोड़ा सा इसका introduction दे रही हूँ कि hoops electrolytic process कहलाता है. ये जो process है of refining, this is given by William Hoops, so it is named as Hoops electrolytic process. और इसमें हम specific gravity वाला concept use करते हैं कि मोल्टन एल्यूमिनिया जो है वो बॉटम लेयर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेयर्स हैं. तो ये पहली लेयर है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर डाउन, देन यू हैव सेकेंड लेयर ऑफ दिस थिंग एंड देन यू हैव थर्ड लेयर है. तो यहाँ पे 3 लेयर्स का वर्क हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों सब तीनों की जो ग्रेविटी है हमारी वो अलग अलग है, रिलेटिव डेंसिटी हमारी अलग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है तीनों चीज़ों की, इसलिए यहाँ पे ये लेयर फॉर्म में आ जाएंगे. और इसमें लेयर फॉर्म में आने के बाद जब आप करंट पास करेंगे तो ये जो यहाँ से इम्प्योर एल्यूमिनियम में से हमारा एल्यूमिनियम बनेगा, आयन बनेगा और वो ऊपर की तरफ जाके प्योर होता चला जाएगा. इसका प्रोसेस, इसके रिएक्शंस नहीं है आपके सिलेबस में, तो बस इतना याद रखेंगे. हम मोल्टन फ्लोराइड्स हैं जो बीच वाली लेयर में, वो भी सब फ्यूज्ड हमारे, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे एल्यूमिनियम फ्लोराइड है हमारा, बेरियम फ्लोराइड है हमारा, और है हमारा उसमें सोडियम फ्लोराइड है ना. ये हमारे इसमें ऑल द मोल्टन फ्लोराइड्स हैं. तो सब इसमें से हमारा जो एल्यूमिनियम है ये भी हमारे यहाँ से निकल के प्योर यहाँ इस वाली लेयर में ऊपर आके कलेक्ट हो जाएगा. दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ओनली दिस रिएक्शंस यू कैन लर्न कि एनोड पे 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेटेड एंड इट विल बिकम आयन, और कैथोड पे उल्टा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और जाके एल्यूमिनियम को प्योर करते चले जाएंगे. तो ये हो गया हमारा रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना है आपको कि कैसे कैसे ये हमारी ओर है बॉक्साइट की. उसके ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जहाँ पे हमने NaOH एंड is added to obtain alumina. So from bauxite alumina is obtained, and then how electrolytic reduction of alumina is done by using 3 electrolytes, that is alumina, cryolite and fluorspar in the ratio 1:3:1, and these are the reactions at cathode and anode. At cathode pure aluminium is formed, and at anode carbon dioxide is formed, although oxygen is formed. But why carbon dioxide is formed? Because you have taken carbon anode. And then in purification you will learn only the reactions of cathode and anode. So this way extraction of aluminium finishes, and because alloys are not in your syllabus, so this chapter finishes here.